गर तू मुझे नवाजे तेरा करम है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲ ਟੋਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਹਾਲ ਟੋਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਥੀਸ ਪਿਲਰਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੈਟਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਾ ਖੁਰਾਨਾ ਐਂਡ ਪਰਪਲ ਮਾਈਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਬਟ ਅੱਜ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਾ ਖੁਰਾਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਸੈਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਾ ਖੁਰਾਨਾ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਨਾ ਫॉर कमिंग to Kashi TV. Thank you so much, Balbir, for having me here today. So, and it is really an honor for me, a privilege for me that today I have come here and I can spread the awareness on what is the importance of mindfulness in our everyday routine and how we can cultivate this habit of being present in this moment. So thank you so much. ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਟਾर्ट कितना हुई सਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। सो मैं चाहूँगी आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आपकी जो सी ये जर्नी है माइंडफुलनेस की, कैसे आपने ये सोचा कि मुझे ये काम करना चाहिए, यू नो आपका बैकग्राउंड कहाँ का है, कैसे आपने ये स्टार्ट किया? क्योंकि काफ़ी बढ़िया मैंने आपके फेसबुक पर भी देखा, काफ़ी आप यू नो संस्थाओं में स्मैथिक वगैरह में काम करते हैं, वहाँ पर काफ़ी लेडीज़ की हेल्प कर रही हैं। तो ये कैसे सब स्टार्ट हुआ? एक्चुअली अगर इफ़ आई गो बैक, अगर मैं पीछे जाऊँ पास्ट में, सो जब मैं बहुत छोटी थी, सो वन डे आई रेड इन वन न्यूज़पेपर, एक बार एक न्यूज़पेपर में मैंने एक हेडिंग पढ़ी, आर यू स्पिरिचुअल और आर यू रिलीजियस? At that moment I didn't know what does spirituality means, but I definitely knew it religion, but I choose spiritual, and then afterwards I search the meaning of spiritual in dictionary. Actually मुझे अभी भी याद है ये, I was hardly 10-12 years old, बहुत छोटी थी, teens में थी अपनी। So then when I found the meaning of spirituality or spiritual, then I thought yes, this is me. And then after my schooling I did the course in naturotherapy from India, and because in naturotherapy हम लोग natural resources से treatment देते हैं, like solar energy, hydrotherapy, रिफ्लेक्सोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन। सो उसमें हम ऐसे रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, जैसे सनलाइट कब ख़त्म नहीं होती। सो यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल पावर्स, ठीक है। तो देन स्लोली व्हेन आई डिड आई फाउंड माई सेल्फ दैट आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड हीलिंग्स, और मेरे को ऐसे लगा कि मेरा पर्पस है हील करना, खुद को भी, फैमिली को, फ्रेंड्स को, एंड देन सोसाइटी। And then I start learning. I did so many courses. मैंने बहुत सारी qualifications ली, कुछ इंडिया में ली, यहाँ पे आके भी मैंने काफ़ी qualifications ली। I am a clinical hypnotherapist. Wow. I am a mindful meditation teacher. I am a yoga teacher. I am NLP life coach.
हिप्नोबर्ड भी करवा सकती हूँ, प्रेग्नेंट मदर्स को बेबी को डिलीवर कैसे करना है कामली वो भी करवा सकती हूँ। सो काफ़ी सारी क्वालिफिकेशंस हैं क्योंकि इंटरेस्ट इसी तरफ है। और कुछ पर्सनल लाइफ में बहुत चैलेंजेस इमोशनल लेवल पे देखे हैं। सो एंड आई ऑलवेज आस्क फ्रॉम माय डिवाइन सोर्स कि मुझे ट्रू विजडम ब्लेस करें सो दैट आई कैन अनफोल्ड माय नॉलेज, है ना। तो बस जो मांगा वो मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है। एंड आई एम कनेक्टेड विद माय पर्पस। जो मेरा पर्पस क्या है, सो आई थिंक माय पर्पस इज टू हेल्प अदर्स। Wow. And I start from myself. It is not that I don't look after myself. I look after myself. I look after my family, my friends, everyone. जो भी मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मेरे एनर्जी फील्ड में आते हैं, मुझे ऑटोमेटिकली मेरे को लगता है मेरा पर्पस है कि कुछ ना सही उनसे बात करके ही उनको अपने अनकंडीशनल लव देकर ही हील किया जाए, यू नो, थोड़ा सा उनको एम्पावर किया जाए। सो डेफिनेटली मैंने आते ही डॉक्टर मोना हमारी पहले रिकॉर्डिंग थी तो मैंने कहा ओ गॉड मुझे दूसरी रिकॉर्डिंग आपके साथ करनी है। तो कहते कोई नहीं रिलैक्स करो तुम 2 मिनट हमने रिलैक्सेशन की, उसके बाद ये स्टार्ट किया। बट जी जो कहते ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ बहुत प्यारे तरीके दे नाल समझाया हैगा। तो यही माइंडफुलनेस जिहड़ा हैगा पहले फुल आप हो, तुहाडा माइंड फुल है तां ही असीं किसी नूं ओह जिहड़ी साडे कोल जिहड़ी चीज़ है वो असीं किसी नूं दे सकदे हां या वंड सकदे हां। सो इन्हां दी जर्नी जिहड़ी है बहुत प्यारे तरीके दे नाल देख लो। एक छोटे जे आर्टिकल कई बारी असीं पढ़दे सानूं पता नहीं हुंदा भी साडी लाइफ इहदे तो चेंज हो जानी है कि साडी जिहड़ी जर्नी हैगी है लाइफ लॉन्ग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्ट है कितना ਵੱਡਾ प्ले कर सकता है। एक वर्डिंग फाइंड करन दे नालों इन्हां दी जर्नी जिहड़ी सी स्टार्ट हुई तो अज इन्ना कुछ ए जानते ने फुल ऑफ नॉलेज। आई विल से डॉक्टर मोना डॉक्टर ऑफ यूनीवर्स आई शुड से दैट। सो डॉक्टर मोना ने साडे नैक्सट ईयर भी काफ़ी शो साडे नाल करने हैं कि भी दसदी है। सो जो अज तुसीं इन्फॉर्मेशन रिसीव करोगे प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करांगी कि जो भी तुसीं जानना चाहते हो स्पिरिचुअली या जिहड़े तुहाडे क्वेश्चन हिप्नोथेरेपी या योगा या किसी चीज़ के बारे भी है चक्रास के बारे कोई भी इन्फॉर्मेशन तुसीं जानना चाहो तो जरूर या मेरी फेसबुक पर तुसीं भेज सकते हो इन्फॉर्मेशन या फिर साडे जिहड़े स्टूडियो के नंबर पर राबता कायम करके तुसीं उन्हां नूं पुछ सकते हो भी ऐसी चाहते हैं कि यह सैशन जिहड़े हैगे हेल्थ टॉक शो दे विच होण, क्योंकि नैक्सट ईयर थोड़ा डिफरेंट हेल्थ टॉक शो होएगा। रेगुलर इन्फॉर्मेशन तुहानूं दित्ती जाएगी सो यू डोंट मिस आउट। सो डॉक्टर खुराना जिहड़े ने इन्हां कोलों हुण असीं जानना चाहांगे कि माइंडफुलनेस एक्चुअली हुंदा की है। जो असीं एक गल करदे हां माइंडफुलनेस दी साडा मकसद की हुंदा है। सो व्हाट इज़ माइंडफुलनेस होता क्या, अगर आप हिंदी में अच्छी तरह डीपली समझाएं हमें जिनको जो पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है एंड माइंडफुलनेस है क्या। मैं इंग्लिश के 2 सेंटेंसेस बोलती हूँ जी जो हमारे व्यूअर्स इंग्लिश समझते हैं उनके लिए, और बाकी फिर मैं हिंदी में ठीक है एक्सप्लेन करती हूँ। सो माइंडफुलनेस मीन्स बीइंग प्रेजेंट इन दिस मोमेंट। आप इस मोमेंट में कनेक्ट हो, जैसे मैं अभी आप बोल रही हूँ आपके साथ, ठीक है, आप मुझे सुन रहे हो, और अगर आप 100% फोकस के साथ मुझे सुन रहे हो और मेरे एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, इसका मतलब आप माइंडफुली यू आर लिसनिंग टू मी, ठीक है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपने अंदर और अपने बाहर क्या हो रहा है, बी अवेयर ऑफ दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन के साथ ऑक्यूपाइड हो गए हैं और हाफ ऑफ द टाइम हमारा आधा फोकस फ़ोन पर है और आधा बाकी के कामों पर है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन रख दो प्लीज़, दैट इज़ अ रिक्वेस्ट एक्चुअली, है ना, एंड देन डू वट एवर यू आर डूइंग, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ट्राई टू कनेक्ट इंटरनली विद योर थाट्स। अपने थाट्स के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। फिर अपने इमोशंस के साथ कि आपके दिल में क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स चल रही हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी फ़िज़िकल बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये माइंडफुलनेस स्टेट इसको हम बोलते हैं कि जिसमें आप 100% जो फोकस है अपने ऊपर रखा हुआ है, अपने काम पर रखा हुआ है या अपने आउटर वर्ल्ड पे रखा हुआ है। तो इसको आप बहुत ईजी वे में प्रैक्टिस में ला सकते हैं कि 100% जिसको कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन, वो है माइंडफुलनेस। वाओ। सो तुसी ध्यान जिहड़ा बेसिकली अपना अपने आप पे रखना हैगा।
जेकर तुसी कोई मान लो कोई कुकिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तुहाडा 100% होना चाहिए कि मैं हुण सब्जी बना रही हाँ तो मैं सब्जी चूज़ की किहड़ी सब्जी है, रंग की है, किस तरीके का टैक्सचर है, की ये फीलिंग है, कलर किहड़ा है दा, सो जो कटना है कि ये सॉफ्ट है कि हार्ड है, यह सारा कुछ देखना। फिर ये जिहड़ी चीज़ मैं बना रही हाँ किस चीज़ च बना रही हूँ, ऑयल किहड़ा पाया, ਇਹਦਾ कलर किहड़ा है, चेंज किस तरीके दे नाल प्याज हो रहे हैं जो असीं सब्जी बना रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ होर ਕਿਹੜੀ चीज़ पै रही है, तो जो खाना है वो भी सोच के खाना भी किस तरीके दे नाल इहदा टेस्ट आ रहा है, स्मैल किस तरीके दे नाल चेंज हो रही है कुकिंग टाइम दे विच, उन्होंने अवेयरनैस किया जाता है कि 100% जो भी काम तुसी करना है, चाहे तुसी एक्सरसाइज कर रहे हो वो भी देखना है भी तुसी एक्सरसाइज कर रहे हो किस तरीके नाल तुसी कपड़े चेंज किए या बाद शावर लिता, शावर की जिहड़ी फीलिंग है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो तुहाडे उत्ते पै रहा है वो फीलिंग तुहानूं किस तरीके की आ रही है, किद्दां तुहाडे सिर दे विच वालां दे विच पानी आ रहा है, फेस ते आ रहा है, उस तो बाद तुहाडी बॉडी वॉश हो रही है। एंड वो जिहड़ा हुंदा है वो माइंडफुलनैस का फस्ट स्टैप, जिद्दां मोना जी ने दस्सिया कि ये फस्ट स्टैप हुंदा है कि देखना कि हो की रहा हैगा, नॉट एक दो होर चीज़ां नाल सोचनियां, बस एक टाइम ते इक्को थॉट वाल जदों तुसीं ध्यान दिंदे हो उन्हों माइंडफुलनैस कहंदे हैगे। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली। सो पंजाबी आ गई आपको अब? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाबी आई नो पंजाबी, आई कैन स्पीक पंजाबी एज वेल। सो बिल्कुल जैसे बलबीर जी ने अभी एग्जांपल दिए, डेफिनेटली जैसे इन्होंने बताया कि जब हम कुकिंग करते हैं, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे। हम सबको पता है कि हमारी ग्रैंड मदर्स, हमारी दादी माँ, नानी माँ, हमारी मदर्स जब कुकिंग करते हैं तो पाठ चलाते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो जब हम पाठ चलाते हैं तो पाठ का क्या मतलब है? पाठ का मतलब ये है कि जो एक एक शब्द है वाणी का, प्रेयर्स का, उसके अंदर वाइब्रेशंस है, तभी वो हमने ऐसे हमारे पीछे से लिखे हुए हैं ना, जी जी, उनमें वाइब्रेशन है। तो जब हम सुनते हैं तो कितना सुकून मिलता है। तो अगर यही पाठ आप बोल बोल के खाना बनाते हो, जब स्टर कर रहे हो अपने खाने को, कुक कर रहे हो, आपके हाथ में कोई फ़ोन नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में आपका स्पैचुला है या करछी जो भी, और मुंह से आपकी वाणी निकल रही है। तो अब आप इमेजिन करो कि वो जो खाना है वो अमृत बनेगा ही बनेगा। तो ये है माइंडफुलनेस का फ़ायदा कि जो हम खाना बनाते हैं और जो हम खाना खाते भी हैं, आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए साइड पे कर दो अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस है, फ़ोन कॉल या लैपटॉप या एनीथिंग, ठीक है। और जब हम खाना खाते हैं तो 4-5 बाइट्स या 1 बाइट खाने की, जिसको हम कौर कहते हैं, ग्राही कहते हैं, ग्राही है ना, वो अगर उसको देखो, आपने तोड़ा बाइट, फील किया टेक्सचर, स्मेल, उसका टेस्ट, उसका कलर, और जब हमने मुंह में डाला उसका स्वाद, उसकी खुशबू, और जिस तरह से हम उसको च्यू करके खाएंगे तो वो जो खाना अमृत बन के अंदर जाएगा। सो यू कैन इमेजिन कि हमें अब दवाइयों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सो माइंडफुली इफ़ वी डू everything, I know 100% sometimes we can't be mindful, I absolutely understand, but the maximum cultivate this as a second habit to be mindful। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो हम स्ट्रेस में आते हैं, स्ट्रेस सबको है, सबको होता है, मैं भी यहाँ आई हूँ, मुझे भी होता है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं आता, हर सिचुएशन में स्ट्रेसेस आते हैं। लेकिन अगर आप उस मोमेंट पे सिर्फ थोड़े से सेकंड्स के लिए बोल रही हूँ, घंटे के लिए नहीं बोल रही हूँ, एक पॉज लो, अपने थॉट्स के साथ कनेक्ट करो, देखो कि थॉट क्या चल रहा है दिमाग में, किस बात का स्ट्रेस है, और उस थॉट के साथ अपने हार्ट में अपने इमोशंस को चेक करो कि इस थॉट के साथ इमोशन कैसे चेंज हुए, और जैसे आपके इमोशन चेंज हुए तो आपकी बॉडी सेंसेशंस कैसे चेंज हुई हैं। तो जैसे आपको रियलाइज़ होगा कि इस एक थॉट की वजह से कि मैं कितना अपसेट फील कर रही हूँ ओवरऑल, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको सजेशन देगा। हम नहीं ब्रेन को कुछ कह रहे हैं, हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे साथ अंदर क्या हो रहा है माइंडफुली, जी जी, ठीक है। और जैसे हमने देखना शुरू किया, हमें पता लगना शुरू होता है कि हमारी बॉडी में यहाँ पे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, यहाँ पे हार्ट बर्न हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, गुस्सा आ रहा है, इस तरह के इमोशंस आप देखना शुरू करते हो। और जैसे आप देखना शुरू करते हो, ब्रेन कहता है लेट देम गो बिकॉज वी डोंट वांट टू कीप दिस इन आवर बॉडी। हम लोग सब क्या करते हैं, हम पाठ क्यों करते सुबह, कि हम रिलैक्स रहें और ब्लेस रहें, ठीक है। तो अगर हम ये सेम हैबिट अपनी ब्रेथ के साथ
कनेक्ट करके करें कि हर मोमेंट में आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट रहो। तो जैसे ही हम अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट होते हैं ना, फिर उस टाइम हम कुछ और नहीं सोच पाते, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो एट ए टाइम एक ही चीज़ कर सकता है। अगर आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट हो गए, जैसे आपने श्वास लिए और श्वास छोड़े, तो जैसे आपका ध्यान गया अपने श्वासों पर, आप कुछ और नहीं सोच पाओगे अब। तो विद इन 8 to 10 ब्रेथ्स, 8 से 10 सेकेंड के अंदर आप ऑटोमेटिकली काम डाउन होना शुरू हो जाओगे बिना कुछ किए। ये 100% सक्सेसफुल टेक्निक है कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट माइंडफुल ब्रीदिंग, कि सांसें भी माइंडफुल होके लो, क्योंकि हमारी एक एक श्वास बहुत बहुत कीमती है। डेफिनेटली, अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हो तो पता लगता है कि एक सांस की कीमत क्या होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कि डॉक्टर मोना ने सानू जिस तरीके नाल समझाया कि माइंडफुलनेस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ टोटली डिफरेंट हो जाती है। साडे दिल की जी रिदम होंगी और डिफरेंट हो जाती है। पेट च डिफरेंट तरीके की टैक्नीकी आवाज़ जी आती है। तो जेकर असी सैड होंगे या कुछ इहो जी चीज़ बारे सोचते हैं जिन्हें सानू बहुत दुख दिता, तो वही भी तुसी अगर रिदम अपने हाथ से सुनोगे, वही जी रिदम हैगी क्वाइट डिफरेंट होएगी जो असी सोचते हैं असी किसी नाल मुहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं। सो इसलिए जी साडी अंदर की क्रिया जी हो रही है उन्होंने बैलेंस करने लई जिद्दां डॉक्टर मोना खुराना ने दस्सिया भी साडी स्वास जिहड़े हैगे है उन्हां दा सानू रैगूलर जिहड़ा है रिदम के तौर पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत होंदी हैगी है। सो हुण होर जाणांगे कि वाई इट्स सो इंपोर्टेंट माइंड सेट करना या माइंडफुलनेस होना ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ये इसीलिए ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इन माइंडफुल स्टेट इज़ वी आर इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। हम इस मोमेंट में आ गए, तो जब हम इस मोमेंट में आ गए, जैसे मैंने आपको भी पहले कहा कि हम कुछ और नहीं फिर सोच पाएंगे। अगर हमारे पास कोई पास्ट की मेमोरीज़ हैं जो हमें बार बार ट्रिगर करती हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी, एनीथिंग फ्रॉम पास्ट, ठीक है, तो उस मोमेंट से आप हटे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब आप माइंडफुलनेस पे आ गए, आप इस मोमेंट में आ गए। सेकेंडली, कुछ फ्यूचर की एंग्जाइटीज़ हैं, क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा, ठीक है, वो जो कब है, हर चीज़ अपने टाइम के साथ अनफोल्ड हो जाएगी। हैव फेथ, सरेंडर। तो जब आपने माइंडफुल स्टेट में आ गए ना, आपने अब ये कहा कि यही मोमेंट है, इसी में जी लो, अगले पल का कुछ पता नहीं। तो जैसे आपने माइंडफुली अपने साथ बात करना शुरू की, तो आपकी जो एंग्जाइटीज़ हैं, स्ट्रेसेस हैं, आपने उनको वहीं से अपने आप को डिसकनेक्ट कर लिया, डिटैच कर लिया। सेकेंडली, जब हम माइंडफुल होते हैं ना, तो सबसे पहले हम खुद के साथ कनेक्ट होते हैं, हम खुद को देखना शुरू कर देते हैं, स्कैन करते हैं। तो जब हम खुद को स्कैन करते हैं तो हमें अपनी एक वर्थ पता चलती है, अपनी वैल्यू पता चलती है, अपनी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि हु वी आर एंड व्हाट वी वांट। तो जब आप अपने साथ कंटेंट हो जाते हो धीरे धीरे, तब माइंडफुलनेस से आप सामने वालों को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो जो हमें गुस्सा आता है ना दूसरों के बिहेवियर पे, वो गुस्सा ना धीरे धीरे काइंडनेस में कन्वर्ट हो जाता है, कंपैशन में कन्वर्ट हो जाता है कि शायद इनके साथ कुछ ऐसा चल रहा है, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं खुद को, मेरे पर जो गुस्सा नहीं है ये खुद से नाराज़ है, या खुद की जो भी इनके अंदर इश्यूज़ हैं, जो अनहील्ड वुंड्स हैं, शायद उस वजह से ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जी, एकदम सही बात आपकी। और ये यही है, क्योंकि जब हम माइंडफुल होते हैं ना, तो हम बेस्ट पार्ट इज़ डिटैच हो जाओ। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम एक वॉल क्लॉक लगाते हैं दीवार पे, तो हम ऐसे होके तो नहीं देखते ना, हम ऐसे होके देखते हैं। क्यों ऐसे होके देखते हैं? क्योंकि हमें दिख जाए कि वो उसका एंगल स्ट्रेट है ना जी। और जब हम बुक रीड करते हैं तो हम ऐसे होके नहीं करते, हम बुक को ऐसे रखते हैं रीड करने के लिए, सो दैट वी कैन रीड। सेम वे माइंडफुल होते ही हमें अब जो इमोशंस और थॉट्स चल रहे हैं उनसे हमने ऐसे हो जाना है, हमने खुद को भी देखना है, कैरिड अवे नहीं होना,
कि हमारे साथ क्या, और अगर कोई बोल रहा है ना उसके साथ भी कैरिड अवे नहीं होना। फॉर एग्जांपल जिसको हम कहते हैं मिररिंग, मिररिंग इज़ अ टर्म कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्माइल, आप स्माइल करो और मैंने भी स्माइल किया, ठीक है, तो ये तो अच्छा है कि इन्होंने स्माइल किया तो मैंने भी स्माइल किया, इससे मेरा भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये गुस्से में है तो मैं ऑटोमेटिकली इनकी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लूँगी, कैरिड अवे हो जाऊँगी इनके साथ, और फिर एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, हो जाता है यूजुअली, है ना। लेकिन माइंडफुल जब हम होते हैं ना तो हम उनको देखते हैं और हम अपने आप को मेंटली बोलते हैं, हमने किसी को नहीं बोलना, हमने सिर्फ खुद से बात करनी है और हमने ऐसे देखना है इनको और सिर्फ सुनना है वो क्या बोल रहे हैं। वो जितना मर्जी बोले, पहले उनको ख़त्म करने दो उनकी बात, वो जितने भी गुस्से में है या रो रहे जो भी, चलो लेट गिव देम स्पेस टू कंप्लीट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सुना, ठीक है। अगर तो वो गुस्से में है और जब आपने कोई रिएक्शन नहीं दी तो फिर वो अपने आप, क्योंकि उन्होंने आपकी जो सुकून है ना आपके अंदर वो एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि हम एब्जॉर्ब करते हैं एक दूसरे की एनर्जीज। आपने उनकी नहीं एब्जॉर्ब की, आपने अपने को बचाया हुआ है, अपने माइंडफुल सेट किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल अपने उस जोन में रहूँगी जहाँ पे सुकून है मेरे अंदर, ठीक है। तो आप सिर्फ देख रहे हो, जैसे हम एक थिएटर में मूवी देखते हैं तो आप उनको एक मूवी की तरह देख रहे हो। थोड़ी देर बाद जब उनको रियलाइज़ होगा कि अब वो उनका सब निकल गया, एम्प्टी हो गए वो, तो वो आपकी एनर्जीज एब्जॉर्ब करेंगे और वो भी शांत हो जाएंगे, फिर आप एक सोल्यूशन पे निकलोगे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है माइंडफुल होने का, रिलेशनशिप सबसे पहले अपने साथ, दूसरों के साथ। सो इसे हम सेल्फ लव कहेंगे, क्या सेल्फ लव है ना। दिस इज ऑल्सो अ सेल्फ लव, अ काइंड ऑफ सेल्फ लव एंड लव अदर्स अनकंडीशनली। कितना प्यारा वर्ड है ना, लव अनकंडीशनली। पर हम ज़्यादातर सोचते हैं भी कोई कंडीशन हो जिस पर हमारा प्यार टिका रहे। हाँ। जब जैसे जैसे आप अपने आप को देखना शुरू करोगे, वही मैं कह रही हूँ कि अपने से शुरू करो ये प्रैक्टिस। आई अंडरस्टैंड कि इस प्रोग्राम में सिर्फ ये अवेयरनेस है ये प्रोग्राम, लेकिन अगर आप और भी आगे बढ़ना चाहते हो इस जर्नी में, बिकॉज दिस इज़ आवर जर्नी, ये हमारी जर्नी है अपने इमोशंस और थॉट्स को न्यूट्रलाइज करने की, कि कुछ भी होता रहे हमने उनकी इंटेंसिटी को ज़ीरो पे ले आना है, कुछ भी होता रहे फिर इंटेंसिटी को ज़ीरो पे लाना है, बार बार ज़ीरो पे लाना है। और कई बार हम कैरिड अवे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम है ना संसार में रहते हैं, ह्यूमन है, इमोशंस आते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि हमें हेल्दी रहना है ना और हैप्पी रहना है। तो हैप्पी रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए सबको पता है क्या करना है, रिलैक्स, काम डाउन। तो वो हम माइंडफुलनेस से अचीव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीका बताया आपने कि पहले आप अपने से प्यार, अपने ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ स्टेप चुक सकते हैं कि असी माइंडफुलनेस वाल जाइए। सो डॉक्टर मोना आप बताएं कि कौन से स्टेप्स आप टेक करेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए, उन्हें बताएंगी कि कैसे स्टेप्स लेने हैं ताकि वो इस जर्नी में आपके साथ रहें। माइंडफुल के कुछ स्टेप्स हैं, एटीट्यूड्स जिनको हम बोलते हैं। सबसे पहला है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। नॉन जजमेंटल को अगर मैं हिंदी में समझाऊँ कि सामने वाले को जैसे वो बोल रहा है, जैसे हम पंजाबी बोलते हैं ना ताने मारना या नेस्टी कमेंट्स देना और कुछ भी ऐसा नेगेटिव बोल देना उनके एक्शन पे, उनके बिहेवियर पे या उनके अचीवमेंट पे, या अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलना कि सामने वाले को अपसेट हो जाए। तो अगर आप एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखते हो उसका मतलब है सामने वाले ने कुछ भी किया, अगर फॉर एग्जांपल मेरे
किसी ने मुझे अपना कोई अचीवमेंट शेयर की और मैंने कहा हाँ उसके तो इससे ज़्यादा मार्क्स आए, या वो तो इस जॉब पर है, वो हायर रैंक पे, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है, तो बेसिकली मैं बहुत जजमेंटल हो गई उनके साथ, है ना। और जब मैं जजमेंटल हो गई, उनको तो मैंने हर्ट किया ही किया, लेकिन जब उनकी अपने को भी कहीं ना कहीं मैंने हर्ट किया जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब हम जजमेंटल होते हैं ना तो हम एक क्रिटिकल कमेंट पे चले जाते हैं। और जब भी हम, आप एक चीज़ को हमेशा याद रखना, जो हमारे वर्ड्स हैं ना, हर वर्ड, हर लेटर, हर अल्फ़ाबेट के अंदर एनर्जी है, ठीक है। तभी हम कुछ वर्ड से खुश होते हैं और कुछ वर्ड से नहीं खुश होते सुन के। तो उसी तरह से जब हम किसी को जजमेंट हमारी देते हैं ना, तो वो क्रिटिकल कमेंट में जाती है और वो उसकी एनर्जी हमारे अंदर से होके निकलती है और सामने वाले पे जाती है। तो पहले तो आपको वो थोड़ा बहुत, वो आपको भी अपसेट करेंगे वर्ड्स, आप शायद बाद में रियलाइज़ करो कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे कई बार हमारे साथ होता है कि हम बोल तो देते हैं, लेकिन बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि शायद काश मैं ना बोलती है ऐसे, है ना, होता है ना हमारे साथ। जी जी। तो अगर आप नॉन जजमेंटल पे रहो तो खुद भी सुकून में रहोगे और सामने वाले भी सुकून में रहेंगे। सेकंड है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब है शुक्राना करना, थैंकफुल होना। तो जितना हम शुक्राना करें सबका, पहले तो अपना शुक्राना, हमेशा हर चीज़ अपने से शुरू करनी है। अपना शुक्राना कि आपने कितना कुछ ज़िंदगी में कर रहे हो, किया भी है, कर रहे हो और आगे भी करोगे, ठीक है। अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो, अपने करियर के लिए करो, जो भी आपको ठीक लगता है। उसके बाद शुक्राना इस डिवाइन यूनिवर्स का। देखो हमें सनलाइट मिलती है फ्री की रोज़, और मिलती रहेगी, कोई पैसे नहीं है उसके, है ना। सनलाइट मिलती है, मून लाइट मिलती है, पानी मिलता है, वो तो ठीक है, अभी सब पैसे से भी मिलता है लेकिन पीछे से तो रिवर्स तो फ्री में पानी दे रही है, जी जी जी, है ना। माउंटेन, सब ग्लेशियर जो आइस मेल्ट होती है, हवा मिलती है, और फूल पत्तियाँ, पेड़, जितने एनिमल्स, बर्ड्स हैं, वो उनका कोई, है ना, आप व्यू करते हो, कहीं जाते हो, किसी लैंडस्केप सीनरीज देखते हो, वो सब फ्री में आपको मिल रहा है। तो उन सब का शुक्राना जो हमें एक यूनिवर्स ने हमें ब्लेसिंग किया है। उसके बाद उन लोगों का शुक्राना जो आपके लिए काम करते हैं, छोटे से छोटा, इवन जो आपके ग्रोसरी स्टोर में आपको सर्व करता है उसका भी शुक्राना, जो आपका बस ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर है, उसका भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, आपके कपड़ों का शुक्राना, आपके जूते चप्पलों का शुक्राना। कि देखो आप एक सेकंड भी नहीं रह सकते इन सब चीज़ों के बिना, क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो दूसरा हो गया शुक्राना। तो जब जितना शुक्राना करोगे उतना ही मल्टीप्लाई करोगे ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जो कुछ हो रहा है ना उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो, ज़्यादा उसमें छेड़ाखानी मत करो चेंज करने की, कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। तो जब हम चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, जो चेंज नहीं हो सकती, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रैफिक में स्टक हो और अब ट्रैफिक में स्टक हो गए, आप लेट हो रहे, अब आप क्या करोगे? आप कितना पैनिक करोगे? आप एक दो फ़ोन कॉल भी कर दोगे जहाँ करनी है, जहाँ आपको टाइम पे पहुँचना है, ठीक है, चलो आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, अब रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है ट्रैफिक। या इस तरह की कितनी सिचुएशंस होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो एक्सेप्ट देम विथ कामनेस। अपने आप से बोलो इट इज़ ओके, इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। और मैं जैसे अभी आपको एक एक्सेप्टेंस बता रही थी, जी जी, पेशेंस। नेक्स्ट इज़ पेशेंस। पेशेंस इसलिए रखने ज़रूरी हैं क्योंकि चीज़ें टाइम के साथ अनफोल्ड होती हैं लाइफ में। अब हम एक 10 साल के बच्चे को ओवरफीड करके ग्रेजुएशन तो नहीं करवा सकते। जी जी, एब्सोल्युटली राइट। और इसी तरह से अगर हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमें लगता है कि वी आर इन अ रश, तो जब हम रश करते हैं तो हमारी एंग्जाइटी लेवल हाई हो जाता है। सो इसलिए प्लीज़ हैव पेशेंस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द नेचर, हैव फेथ एंड सरेंडर। द मोर यू विल हैव पेशेंस, यू विल बी रिलैक्स। उसके बाद है एक्सेप्टेंस। तो मैंने लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़, कोई थॉट, कोई इमोशन हमें सर्व नहीं कर रही। सर्व करने का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा जो हमें एंग्जाइटी दे रहे हैं, जो आप स्कैन करते हो ना खुद को, तो आपको पता चल जाता है कि अब ये चीज़ें मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। जैसे कोई पुरानी बात किसी ने आपको कुछ बोला आज से कुछ साल पहले और आपने अभी तक अपने अंदर ही रखा हुआ है, जैसे उसका नाम आता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम से टाइट हो जाती है। तो उसमें आप उनका तो नहीं नुकसान कर रहे, आप अपने हार्ट के ऊपर एक प्रेशर ले रहे हो किसी के वर्ड्स का,
कि उन्होंने आपको कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले कुछ बोला है, क्योंकि फिर वही बात आती है कि वर्ड्स पावर रखते हैं। लेकिन अब ये आपके हाथ में है उन वर्ड्स को लेट गो करना, कि जब आप जिस मोमेंट पे आप ये सोच लो कि मैं इतनी पावरफुल हूँ और मेरे अंदर ये समझ है और मैं इन वर्ड्स को अपने अंदर से रिलीज़ कर सकती हूँ, तो उनको जाने दो, रिलीज़ कर दो। क्योंकि जैसे जैसे आप उनको रिलीज़ करोगे वैसे वैसे जो आपका मन है ना वो शांत होना शुरू हो जाएगा। और फिर वही एक स्टेज ऐसी आएगी फ्यूचर में कि उनके लिए भी आपके अंदर दया आ जाएगी। वाओ, सो ब्यूटीफुल। एक प्रोसੈਸ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਮੋਨਾ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਲੈਟ ਗੋ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਗੋ ਯਾਨੀ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਬਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਬਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਡ ਥੋਟਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਗੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਸਟੇਟਸ ਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅਸ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਾ। First of all, I would suggest you from this moment try to remind you, अपने आप को ना बार बार ये याद दिलाना है कि हमने हर काम जो भी कर रहे हैं वो फोकस के साथ करना है। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि अपना फोकस अपनी स्टडीज़ पे रखो, क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि वो जो पढ़ रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर लें और अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से करें। सो सेम वे हमारे साथ भी वही है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स के लिए ही खुद को प्रिपेयर करना है। हमारे एवरीडे की रूटीन की जो हमारे हाउस चोर्स हैं, जैसे खाना बनाना, क्लीनिंग करना, खाना खाना, शावर लेना, ड्राइविंग करना। ड्राइविंग करने में भी अगर आप माइंडफुल हो तो आपको पूरे चांसेस हैं कि आप सेफली ड्राइव करोगे जी। आप ओवर स्पीडिंग नहीं करोगे, आप रेड लाइट नहीं जंप करोगे और दूसरे ड्राइवर्स भी सेफ रहेंगे आपसे। तो माइंडफुल होने का ये भी फ़ायदा। और किस तरह से हम बार बार अपने को याद दिला सकते हैं, क्योंकि इट इज़ एब्सोल्युटली ओके अगर हमारा ध्यान 10 जगह पे जा रहा है। इट इज़ ओके, क्योंकि दिमाग का काम ही इधर से उधर घूमना। लेकिन जैसे ही आपको 11वें मिनट पे रियलाइज़ हुआ कि ओह मैं बड़ी देर से पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ, उसी टाइम बड़े प्यार से अपने ब्रेन को वापस ले आओ उस मोमेंट पे जो आप काम कर रहे हो। अगर आप कुछ ड्राइंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और अगर कुछ नहीं भी कर रहे ना, तो भी अपना ध्यान बार बार उस मोमेंट पे लाना है जहाँ पे आप हो। जैसे अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो मुझे अपना ध्यान बार बार यहीं पे लाना है, जितना मर्जी मेरा ध्यान भटक जाए। और अपने साथ हमेशा काइंड रहना है, कोई अपने को प्रेशर नहीं देना, कुछ गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैं 1 घंटे से टाइम वेस्ट करूँ। इट इज़ ओके। बार बार खुद को बोलो इट इज़ ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ। क्योंकि हर चीज़ बार बार अगर आप अपने आप को बोलते जाओगे ना तो धीरे धीरे ब्रेन ना टेम हो जाएगा। वी हैव टू टेमिंग आवर ब्रेन एंड वी हैव टू कल्टिवेट दिस न्यू हैबिट। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हम बच्चों को शुरू से स्टार्ट करते, बिकॉज आई स्टार्ट टेकिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 4. Oh wow, and I that's start very good. teaching them to connect with their breath, with their emotions. क्योंकि बच्चों को तो ये भी नहीं पता चलता कि इमोशंस क्या होते हैं। अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली या तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा है, कई बार ठीक है फिजिकल तो है, बट कई बार इमोशनल इश्यूज़ भी होते हैं कि बच्चे कुछ ऐसा देखते हैं, सुनते हैं, वो बता नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, तो उनकी बॉडी शो करती है साइंस। तो अगर बच्चों को अभी से हम बताएं कि ये चीज़ें हैं और आपको हार्ट में, पेट में, सिर में, कहीं पे भी कोई पेन हो रहा है, अनइजीनेस हो रही है,
शेयर विद अस। तो ये माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा, जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जो पढ़ते हैं, अगर उनको उस टाइम बताया जाए कि अगर आप इतने से आपका जो लेसन है आप फोकस से पढ़ोगे तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आपका टाइम कम लगेगा, जल्दी लर्न कर लोगे, सारा दिन नहीं लेके बैठे रहोगे। और उसी तरह से जो एडल्ट्स हैं, माइंडफुल हो, बार बार अपने को याद दिलाओ कि हमने सबसे पहला काम क्या करना है, अपने थॉट्स के साथ हमेशा जुड़े रहना है कि हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है। और जैसे थॉट्स आएंगे ना, उस तरह की इमोशंस आपके हार्ट में डेवलप होंगी। तो अपने इमोशंस के साथ भी जुड़ना है। और जैसे आपका हार्ट और इमोशन आपने देख लिया तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस टाइम मेरे अगर स्टमक में कुछ है या मेरे ब्रेन में कुछ है या मेरी बैक में कुछ है, तो ये एक इमोशनल इशू है। जैसे जो बैक एक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ओल्ड मेमोरीज के स्ट्रेसेस होते हैं जो बैठती हैं, जो नॉट्स बॉडी में आती हैं ना। हार्ट ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, या स्पाइनल कॉर्ड या ये शाइटिका, कुछ नहीं है, ये हैं फिजिकली हैं, मेडिकली हैं, लेकिन क्रॉनिक जो आपने अपने इमोशंस कैरी किए हुए ना, ये उसका रिजल्ट है। तो बार बार खुद को प्लीज़ याद दिलाओ कि मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं, मेरे इमोशंस क्या चल रहे हैं और फिजिकली मैं कैसा फील कर रही हूँ। जैसे आप बार बार बोलोगे ना, तो आपका ब्रेन आपको खुद ही गाइड कर देगा कि अब प्लीज़ इनका टाइम पूरा हुआ, इन सबको जाने दो, विदा करो इनको। वो विदा करने का जो सा टाइम आता है, आई थिंक वो सबसे आई थिंक उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस कई बार हम सोचते हैं। बट डॉक्टर मोना, आपने बताया कि इतना हार्ड भी नहीं है। हम सोचते हैं भी यू नो कि अपने थॉट्स पर मेनली हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, तो अपने पर करना है, काम करना अपने पर करना है। कई बार होता है कि हम किसी को कह लो भी, और किसी से सर्विस लेनी है वो मुश्किल है, लेकिन अपनी सर्विस हमें खुद से लेनी है, तो विच इज शुड बी मोर ईजियर, वेरी इजी, एंड यू आर इन कंट्रोल। क्योंकि आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, जिसको हम को डिपेंडेंसी कहते हैं। आप इतने इंडिपेंडेंट हो, ये सारे काम आप खुद कर सकते हो। जैसे हम एक बार ऐसे फिंगर करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी पे, तो वो 4 फिंगर्स तो हमारी तरफ ही आ रही है ना जी, ठीक है। हर बात के लिए जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो कुछ भी अच्छा काम करना है ना, हम देखो हम कितना हमारे अंदर दया है, कंपैशन है कि हम दूसरों के लिए कितना कुछ कर देते हैं। हम खाना देते हैं, पैसे देते हैं, हेल्प कर देते हैं ना जी, सबके लिए करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी 2 आँखें हैं ना, ये सामने की चीज़ें देख रही हैं, इसलिए हमें दिख रहा है तो हम कर रहे हैं। जो हमारी थर्ड आई है, जो हमारी इनर आईज है, जो हमारी सोल है, उसका क्या, हम कहाँ जाएं, हमें कौन करेगा। तो आज से, अभी से, इस मोमेंट से अपने पेरेंट खुद बन जाओ, अपने फ्रेंड खुद बन जाओ, अपने लवर खुद बन जाओ। लव योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप को बार बार बोलो आई लव माई सेल्फ। जितना आप बोलोगे ना आई लव माई सेल्फ, आप उस तरह से अपना ख्याल रखना शुरू कर दोगे जैसे आप अपने लवर का ख्याल रखते हो। सो आज दा जेड़ा मेन हैगा ना, आई विल से कि एक मंत्र जेड़ा हैगा, मंत्र सो डॉक्टर मोना वालों आज दा जेड़ा मंत्र हैगा है कि मैनू अपने आप दे नाल प्यार हैगा। सो ये जिन्नी बार रिपीट करोगे तो वाकई अपने आप दे नाल प्यार हो जाएगा, ये इन्हां दा मनना हैगा। सो डॉक्टर मोना, देयर इज काफ़ी जो सी मिथ्स होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को भी, वो मिथ्स जो सी माइंडफुलनेस पर है वो क्या क्या मिथ्स हैं। सबसे पहले मिथ तो ये कि ये कोई रिलीजन नहीं है। माइंडफुलनेस इज़ नॉट अ रिलीजन बेस्ड, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो कोई रिलीजन को फॉलो करते हैं। we just love ourselves and we love to be in the present moment. Second, mindfulness की myth है कि usually when I ask others कि they think कि mindfulness का मतलब है कि relax कराना, नहीं। mindfulness का मतलब है aware कराना कि what's going on inside you and outside you, कि अपने अंदर झांको और अपने बाहर झांको। बाहर तो दिख ही रहा है हमें, लेकिन दूसरे तरीके से झांको अब, कि अब जो आपका नज़रिया था ना अभी तक देखने का, वो उसको अब धीरे 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 हमने कल्टीवेट करना एक न्यू हैबिट में। तो हमने कुछ फिक्स नहीं करना, क्योंकि फिक्स वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमारा ब्रेन, देखो ब्रेन का क्या मतलब है कि ब्रेन के अंदर ब्रेन है ब्रेन के अंदर ब्रेन है, ठीक है, माइंड के अंदर ब्रेन है, और ब्रेन हमेशा वही करता है जो हम ब्रेन को दिखाते हैं। Absolutely. तो जब हम ब्रेन को ये दिखा रहे हैं कि अरे अरे ब्रेन, मेरे को तो बहुत ये वाला थॉट चल रहा है, तो अब मैं क्या करूँ, तो ब्रेन कहेगा अपने हार्ट में झांको, तो हार्ट कहेगा अरे मुझे यहाँ पे एंग्जाइटी हो रही है। फिर इन दोनों को देखा, ब्रेन ने कहा अपने स्टमक में झांको, स्टमक में भी क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, यू नो। जी जी। तो जैसे ब्रेन ने हमें एक पिक्चर दिखाई, तो ऑटोमेटिकली अब ब्रेन कहता है कि अब मैं जाने दूँ उनको, निकाल दूँ,
तो हम कहेंगे हाँ 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 जाओ। हम कहाँ कहाँ भटकते हैं सुकून के लिए। सबसे पहले अपने लिए जीना है, अपने साथ जुड़ना है, अपने से प्यार करना है, जो खाना खाना है खाओ, जो घूमना है घूमो, जो कपड़े पहनने पहनो। सो लिव योर लाइफ बिकॉज एवरीथिंग इज नथिंग इज़ परमानेंट हियर, ठीक है। अपनी ज़िंदगी जियो और अच्छे वे से जियो। और सेकेंडली, इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद अस, if you want more information, if you want to learn this mindful meditation, so you can contact Balbir ji through this Khanchi channel, and I'm always here to serve you, like I said earlier. So this is one big message: love yourself unconditionally, accept yourself unconditionally, and this is our birthright to love ourselves, to feel happiness, and to be in the peaceful state. So just one thing I just want to make sure that you are not listening this meditation while driving, and you are not operating any machine while listening to this guided meditation. It is a very short meditation, but it can take you into deep relaxed state. So first of all, make yourself comfortable. हम लोग कुछ नहीं कर रहे इसमें, कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं. Simply connect with your breath, and now just see how you are breathing in and how you're breathing out. Simply अपने श्वास कैसे आप ले रहे हो देखो. Breathing in and breathing out. Breathing in, breathing out. In, out. और अगर आपको इसको और अच्छे से फील करना है, अपने दोनों हाथ, एक हाथ अपने चेस्ट पर और एक हाथ अपने बेली पर. तो देखो, आप जब सांस लेते हो, सो राइज एंड फॉल ऑफ योर एब्डोमेन. कितना क्लियरली दिख रहा है कि हम सांस ले रहे हैं और हम सांस छोड़ रहे हैं. और अब इस मोमेंट में आप ये भी देख सकते हो कि जब हम श्वास अपने नाक से ले रहे हैं तो वो क्या कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं आपको. एक ठंडापन फील हो रहा है आपकी नोज़ में. माइंडफुली सी, when you inhale, you're feeling the coolness of the air inside your nostrils. And now you can close your eyes to be in this moment. अब आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो अगर आप करना चाहो. इस मोमेंट में हम कुछ नहीं कर रहे हैं. सिंपली हमारा जो फोकस है वो हमारी ब्रेथ पर है. आवर फोकस इज़ ओनली ऑन आवर ब्रेथ. वी आर वेरी जेंटली ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. माइंडफुली वी आर सीइंग आवर ब्रेथ. माइंडफुली वी आर सीइंग द मूवमेंट ऑफ आवर एब्डोमेन. Mindfully we are seeing the cooling air coming inside the nostrils. And when you are mindful, now you can scan your thoughts. You can see what thoughts are there, what you are thinking. आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं. स्कैन योर इमोशंस. अपने हार्ट में देखो किस तरह के फीलिंग्स आ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हो अपने हार्ट में. और अब इन दोनों की हार्मनी से बॉडी में कैसा फील हो रहा है देखो. सी योर बॉडी सेंसेशंस. आपको कैसा फील हो रहा है. Spend some time with you. This is your time. Very precious time. So now you are in mindful state. अगर इस मोमेंट पे ध्यान कहीं और जा रहा है, it is absolutely okay. धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से वापस अपने श्वासों पे ले आओ. बार बार लेकर आओ. Bring your focus again and again on your breath.
take a pause. Bring back both the hands on your lap. And now you can open your eyes. So I'm just asking Balbir now how you're feeling. Absolutely amazing. Thank you viewers. We will speak to you in our next health talk show किसी और गेस्ट के नाल मिलांगे.